Yes, children, let me almost, you can say finish, nobody can finish, but at least the basic idea of the questions I have tried to give you. Vast number of questions are there. So how anybody can claim that he has done everything? But at least the concept teacher should do, and the same I also have tried to do it. Let me attempt the questions of plane. One small question here I am finding. Find the distance of point point 3i minus j plus 2k from the plane r dot I minus 2j minus 3k equal to 11. In Cartesian system, children, in Cartesian system, if the plane is ax plus by plus cz plus d equal to 0, then the distance from any point to the plane, that was the same what we have shown in the straight line, that is ax1, this is the formula, plus by1 plus cz1 plus d upon under root a square plus b square plus c square, that is p. Now let me see the point. कार्टेशियन सिस्टम में अगर पॉइंट करें तो पॉइंट इज 3 minus 1 and 2. You can very well understand that had it been the point, what could have been the vector? 3i minus j plus 2k. 3i minus j plus 2k, उसको कार्टेशियन में कर रहा हूं. And the plane is xi plus yj plus zk dot I minus 2j minus 3k. Here is the plane minus 1. That is that is minus 1 equal to 0. No, ये minus 1 xi plus yj plus then the plane is yes x minus 2y plus minus 3z minus 3z minus 1 equal to 0. कैसे कर रहा हूं मैं? xi से जब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर हो जाएगा, j स्क्वायर k स्क्वायर ऑल बीइंग 1. लेकिन i डॉट तो आप कहेंगे फिर xi से why don't you multiply yes xi, तो उसके बाद से इनको yj से मल्टीप्लाई किया तो yji या xij all shall be 0. xi into i, that is xi square, xi into minus 2j minus 2x ij means I dot j means 0. Why 0? Because I and j are perpendicular to each other, and in dot product that gives cos theta, cos 90, and hence 0. तो हमेशा ये जानिए. And then the plane is here and the point is here, the formula is here, then distance या p आप कह रहा है perpendicular distance
ax1, the point is 3 ax1, 3 into x, that is 3, minus 1, then minus 1 I shall substitute, then minus into 2 into minus 1 and plus 2 into minus 3, 2 तो यहाँ रख दिया तो minus 3 whole divided by under root a square यानी 1 square plus minus 2 square plus minus 3 square, and answer. This is the answer. Shall you like? 3 plus 2 5 minus 6 यानी minus 1, 3 plus 2 that is 5 and minus 6 that is minus 1 upon under root 1 plus 4 plus 9 यानी that is equal to minus 1 upon under root 14, that is 1 upon under root 14, modulus value, the distance is minus value. The next, but here do 3, oh minus 1 I am forgetting, where is the minus 1, so then 3 into 3 plus, that is 3 plus 2, then 5 minus 6, this minus 11 है शायद क्या, where is it? Let me see the question. Yeah, it is 11. तो छोड़ो ना, अब हम क्यों मेहनत करें, ये अच्छा 11 लिख दिया, वैसे वो था क्वेश्चन -11 and then that is equal to 3 plus 2 and minus 3 and minus 2 that is minus 1 और इधर minus 6 minus 11, that is the answer. Yes, that is the answer. छोड़िए, that is the answer. वो मुझे ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए. हाँ, the next question, what did I do here? I converted to plane, that is x minus 2y minus 3z minus 11, and what is the point from where I wanted the distance? Yes, 3 minus 1 2. The next, find the equation of the plane which is parallel to x-axis. Find the equation of the plane parallel to x-axis. And has intercept 5 and 7 on y-axis and z-axis. It has not given the intercept on x-axis. Then how to do it? But moreover, the plane is parallel to x-axis. Plane is parallel to. Let equation of the plane be x upon a, आप जानते हैं ऐसा ही फॉर्म रखते हैं, प्लस z upon c equal to 1. This is the equation of the plane. Here
1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are the direction ratios of the normal of the plane. Normal of the plane. And equation of the plane here, and it is parallel to x-axis. It is parallel to x-axis, that is डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0. आप जानते हैं एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0, वाई एक्सिस का 0 1 0, जेड एक्सिस का 0 0 1. ये मत कहिएगा कि सर ये तो डायरेक्शन कोसाइन है. वो डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियो हो, आई टेक इट डायरेक्शन रेशियो दैट इज मोर सेफर देन द डायरेक्शन कोसाइन. यहां तो डायरेक्शन कोसाइन से मैं जानता हूं. एंड देन द कंडीशन इज, हाँ कंडीशन, अच्छा इसका एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ये 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C उसके परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रेशियो है. ये परपेंडिकुलर आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन और ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन. तो लाइन का नॉर्मल है. सो 1 upon A into 1 plus 1 upon G into 0 plus 1 upon C into 0 equal to 0. So 1 upon A equal to 0. Then equation of the plane has turned as y upon b plus z upon c equal to 1 as 1 upon a equal to 0. But what's the intercept on y axis and z axis? So y upon 5 plus z upon 7 equal to 1. आंसर क्यों? 1 upon a तो 0 हो गया and it is giving that b the intercept 5 and c that is the intercept 7. So 1 upon a 0, तो उसके के बाद ये शक्ल आ गई y upon b plus z upon c equal to 1, and then I have substituted b as 5, c as 7, and hence the answer. Find the distance between the parallel planes. हम कार्टेशियन में करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है. Find the distance between parallel planes I rub it now. Parallel planes. What are the parallel planes? R dot 2i minus j plus 3k, 2i minus j plus 3k R dot minus 4 equal to 0, and further R dot, you know that R is xi plus yj plus zk. R is taken at the variable point xyz, and if any point is there, that's vector in that form of, that is xi plus yj plus zk dot, the other
plane 6i minus 3j plus 9k plus 13 equal to 0 इस पर है। तो planes are then planes in Cartesian form शॉर्ट में कर दूं r इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो होगा 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स आई यानी 2x, वाई जे यानी माइनस वाई और प्लस जेड के, तो जेड के और 3 है तो 3z और k स्क्वायर आई स्क्वायर तो होता है, तो दैट इज 0। फर्दर इन सेकेंड केस 6i माइनस 3j प्लस 9k प्लस 13 इक्वल टू 0। ये दो प्लेन्स हो गए कार्टेशियन फॉर्म। उससे भी कर सकते थे, ये हमारे बच्चों को आसान लगता है इसलिए ये ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये 6 माइनस 3 प्लस 9 है, पैरेलल होना चाहिए। दिस कैन बी रिटेन एज 2x माइनस 2x माइनस j, क्यों j रखता हूं मैं, y और ये z, तो प्लस 3z प्लस 13/3। कहां से 3 हो गया? अरे मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, सो दैट सिमिलर शुड बी देयर। Here I divided by 3. This is number 1, this is number 2. Distance between two planes is equal to d1 minus d2 upon under root a square plus b square plus c square। हमेशा कर लेना चाहिए कि उसको एक सेम रखना चाहिए। जैसे ये उसेम होगा ये क्योंकि पैरेलल प्लेन्स हैं, लेकिन आप जैसे 6x आया तो 3 से डिवाइड कर दिया तो सेम हो गया। दैट इज d1 माइनस d2 हियर माइनस 4 प्लस माइनस 13/3। अरे माइनस 4 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, होल अपॉन 2 स्क्वायर अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर plus 3 square, and that is 12, that is minus 25 upon under root 14, and this is equal to 25 upon under root 14 answer। Next, और देख लो क्वेश्चंस कोई छांटता हूं। I turn to Cartesian form so that it can be easily understood. Otherwise you can go with the formula given in the books that you can also find with the help of वेक्टर फॉर्म। कहीं कहीं मुझे मजबूरी होती है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में मैं a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, इसलिए कि वो दूसरे मेथड से, कार्टेशियन मेथड से हार्डर पड़ता है। अगर मान लो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हो तो यू टर्न टू vector form। Here if the point 11p points 11p
P and -301. Sometimes in copying the question also some mistakes often happen. 11P and -301 be if be equidistant from the plane r dot 3I plus 4j minus 12k plus 13 equal to 0. Fine. 11P minus 301 r dot 3I plus 4j minus 12k plus 13. The plane in Cartesian form, अब तो कर चुके हैं इसलिए आपको, the plane in R is xi plus yj plus zk, तो जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x प्लस 4y माइनस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0, ये हो गया. And then it speaks that if the points A from the plane are from the plane क्या the plane, पता है ना sometimes question equidistant, this लिखा है. If the points ये equidistant ये लिखा है, I didn't watch it. ये और ये points equidistant ऐसे, तो आप distances निकाल दीजिए. What is the formula? Formula is ax1 plus by1 plus cz1 plus d. अभी किया हूं, a square plus b square plus c square. This is not this. This was the part of the previous question. Here it is given P1 equal to P2. यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस होगा P नहीं P, अच्छा ठीक है P1 है, कोई बात नहीं. P1 equal to P2, मतलब इससे जो डिस्टेंस निकाला that is P1, इससे जो डिस्टेंस निकाला that P2. It is given that equidistant, so P1 equal to P2. Let me have the P1, that is 11P, ये P दूसरा है P1 से, 11P to this point. So distance from 11P to the plane 3 into 1 plus 4 into 1 minus 12 into P plus 13 whole divided by under root 3 square plus 4 square plus minus 12 square. This is P1 equal to, and then this is 3 plus 4 plus 13 minus 12P whole divided by 13. I know very well, 9 and 16, 25, and this is 144, that is 13, I know. And then this is equal to 20 minus 12P upon 13. This is number 1. Then I should find P2. ये क्वेश्चन तो -301 रखना पड़ेगा.
हाँ कहाँ रखूँ? Here P2 is, I am writing here, P2 is -3, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये इक्वेशन कहाँ पर, हाँ ये है -3 रख रहा हूँ, -3, तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 0 प्लस -12 इंटू z इज 1 प्लस 13 होल डिवाइडेड बाई 13, जैसे पिछले क्वेश्चन में था। -3 इंटू 3 ये हो गया, 4 इंटू 0 एंड -12 एंड देन P2 is here, that is -9 -12 plus 13 upon -9 0 and -12 plus 13, and this is -8 by 13 P2। ये आप वॉचफुल रहिएगा, कहीं मिस्टेक है तो है, एंड दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल नॉट मी, इसलिए कि मेरे से गलतियां हो रही हैं ऐसा नोट डाउन करने में, बस। तो देन P1 शुड बी इक्वल टू P2 नंबर 2, बट P1 इक्वल टू P2, सो -8 by 13 that is equal to 20 minus 12P upon 13 हमें अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैंने इसमें किया। देन -28 इक्वल टू -12P। कभी कभी क्या होता है ना, फट से अगर उसका आंसर R इक्वल टू 1 2 ऐसा टाइप आता है तो लगता है कि आई एम गोइंग ऑन करेक्ट, हो सकता है ये भी सही हो। P इक्वल टू 28 by 12 एंड दैट इज 28 by 12 and that is 7 by 3. If God bless, nowhere I have mistake is done. Yes, correct. The next, find the equation of the plane parallel to the line which contains the point 5 2 -1 and passes through origin. 5 2 -1, find the equation of the plane parallel to the line मतलब ये 1 3 2 लिख दूं, क्वेश्चन लिख दूं। Find the equation of the plane parallel to the line। ये मैं फिर से एक बार समझाऊंगा बच्चों को। पैरेलल टू द लाइन x -2
अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2। मेरे बेटा, मेरे बच्चों, ये देख लेना, जब इक्वेशन द प्लेन कह रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, सो 132 उसका ए बी सी हो जाएगा। अभी और क्वेश्चन तो पूरा नहीं हुआ। विच कंटेन्स द पॉइंट, विच कंटेन्स मतलब वो प्लेन में ही ये पॉइंट है 5 2 -1 and passes through origin and passes through origin। माने ये दो पॉइंट्स, इट मीन्स द इक्वेशन ऑफ द प्लेन solution, equation of the plane passing through origin पहले कर दूं, passing क्यों पहले कर दूं? अरे वो d 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? any plane usually passing through origin a into x minus 0 plus b y minus 0 plus c z minus 0 plus d, यानी ax plus by plus cz। मोर डी इज 0। नेक्स्ट कह रहा है, हाँ यस, अच्छा बेटा, ये तो अगर होगा तो इट विल पास थ्रू ओरिजिन देन डी विल बी 0। क्यों यहीं पर डायरेक्ट छोड़ दूं ना, क्यों इस तरह करूं? यहां पर ये पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो डायरेक्ट लिख दूं, हाँ थ्रू ओरिजिन उतना करना पड़ेगा, डायरेक्ट थ्रू ओरिजिन, सो दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो हाँ आप ध्यान रहे, लाइन में भी ध्यान रहे हैं कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, हाँ ए एक्स प्लस बी वाई। और क्या कह रहा है? यस, कहाँ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द लाइन। ओहो, एंड हियर एंड दिस इज आल्सो एंड पैरेलल, तो ए तो ऐसे ही आ जाएगा, ए बी सी यहीं पर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर्स। इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फर्दर क्या जरूरत है इतना करने का? इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन तो नहीं, पासिंग थ्रू 5 2 -1 दैट इज a x minus 5 plus b y minus 2 plus c z plus 1, a x minus 5 plus b that is equal to 0। तो यहीं पर आंसर हो गया। क्या आंसर दिया है? दैट इज 7x एंड देन हियर इट इज। तो एक तो पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है, वहाँ पर 1a प्लस 3b प्लस 7c इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो एंड हाँ
ए, डायरेक्ट करूँ मैं, करना पड़ेगा बेटा, हाँ मैं चाहता था डायरेक्ट करूँ लेकिन डायरेक्ट में बहुत शॉर्ट हो जाएगा। हाँ हाँ यस थैंक यू। हाँ तो एक बार ये नंबर 1 नंबर 2 लिख दूँ, नंबर 1 एंड नंबर 2। देखना नंबर 1 फ्रॉम द कंडीशन number 1 as it passes through 0 0 d 0 then 1a, अभी समझा रहा हूं, 1a plus 3b 3b plus 7c equal to 0। why it is 0? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। सो जब भी कभी प्लेन का इक्वेशन होगा तो उसमें ए बी सी उसका नॉर्मल का रेशियो होता है और ये लाइन का रेशियो है और ये दोनों पास करते हैं, इसलिए 1a plus 2 1a plus 3b, दिस इज नंबर 1 एंड further it passes through and here a into that the question somewhere may be wrong. Question वो तो पॉइंट ठीक ही है and then it passes through 5 to 1. क्या यार व्हाट इज हाँ जी यस एंड आल्सो इट पासेस थ्रू 5 to 1 देन 5a plus 2b minus c। अभी कैंसिल करता हूं, क्वेश्चन समवेयर इट लुक्स रॉन्ग, अभी जस्ट नाउ आई शैल डू इट एंड देन अच्छा one more question is given. I rub it now. Further the question is here, prove that the line this and this are coplanar. Prove that the lines x plus 1 by 3 equal to y plus 3 by 5 equal to z plus 5 by 7 and x minus 2 upon 1 equal to y minus 4 upon 4 equal to z minus 6 upon 7 are coplanar. My dear children, whenever it is asked, prove that these lines are the lines are coplanar, the formula is x2 माइनस डिटरमिनेंट फॉर्म से इसको लगा लिया करो हमेशा कोप्लेनर। दूसरे मेथड्स हैं और वो हमने किया भी है सम क्वेश्चन में, बट दैट विल बी लेंथियर। डायरेक्ट अब इसको x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 then L1 M1
n1 and L2 m2 and n2, it is the determinant form should be 0. ये होना चाहिए x2 minus x1. तो x2 क्या है? This is that is 2. Here points are points on first. On first, this is first, this is second. देखना, that is -1, -3. आप कहेंगे कहाँ +3 है, and -5 L1 and L1 M1 N1 being 3, 5, 7. ये पॉइंट्स है. पॉइंट्स कैसे? अगर ये पॉइंट्स हैं तो अगर वो इक्वेशन निकालना हुआ तो x माइनस -1 x + 1, y माइनस -3 y + 3, z -5 दैट इज +5, और ये तो x - x1 upon L1, y - y1 upon M1, z - z1 upon N1. Similarly here that is in second points are 2, 4, 6 ना. अरे जब 2 होगा तब तो x - 2 x - 4 and L2 M2 N2, L2 M2 N2, that's being 1, 4 and 7. So condition is the determinant should be 0. So condition is the value of determinant, ये सबसे आसान है, मतलब इस टाइप से करना, is 0. Then what should be? It is, अब वो determinant form करने जा रहा हूँ, x2 minus x1 here 4, y2 minus y1 8, z2 minus z1 12, L1 M1 N1 that is 3, 5, 7 and L2 M2 N2 that is 2, 4, 6. और बेटा ये तो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू दैट इट शुड बी, डू इट, इट शुड बी 0 आप करेंगे, एंड इफ इट इज 0 देन द 2 लाइन्स आर कोप्लेनर. ओके, I should come to the short questions. Now open it. Switch off. रुक जाओ. Now let us see here short answer type questions. Short answer वो कहने के लिए आपके लिए long answer type हो जाता है. तो here plain I shall do only in short, not so many questions are there. It cannot be called short. Here आपको सब लेंदी करेंगे. Find the equation of the plane passing through the points 2 and 0. Any equation, I'll do all the questions, whatever the questions I shall attempt, I'll leave in the middle where you can start. Only concept I'll be giving. Any equation of the plane passing through x1 y1 z1 is a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 equal to 0. So if it passes through 2 and 0, look here the question passes through
210, 3 minus 2, 3 minus 2 minus 2, and 317. So equation is a into x minus 2 plus b y minus 1 plus c z minus 0 equal to 0, number 1. Again it passes through 3 minus 2 minus 2. It passes again 3 minus 2, तो इसको सेटिस्फाई करेगा. Then a into 3 minus 2 plus b into minus 2 minus 1 plus c into minus 2, and then minus 2 minus 2 minus 0 equal to 0. This is number 2. Then it passes through 317, so a equal to, again with the same, again putting the same, this 317 in the first equation, then 317, then 3 minus 2, 3 minus 2 plus b, plus b, plus b, 1 minus 1 plus c, z minus, that is 7 minus 0. This is number 3. Again I am writing second and third. Then a from second minus 3b and minus 2c equal to 0. This was the second, and third is a plus 0b plus 0b and plus 7c equal to 0. Then a upon b upon c upon ऐसा कर लेंगे, and then a upon, you know, this is minus 21 minus 21 and here minus 0 equal to b upon minus 2 minus 7 and c upon 0 and 3, 0 and plus 3. Look here, 0 and this is 9, and then a upon 21, b upon minus 9 and c upon 3. Then a b c का जो proportional value है, यानी put 21, where the question yes says here, put a equal to 21, b equal to minus 9, c equal to 3 in first and answer. You can ask one thing, why ये तो equal है, this is the proportional value. अरे equal to k होता तो k रखते तो 0 होता, proportional value है ना बेटा, इसलिए a equal to, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं. अरे मान लो 2k है, 3k है, 4k है, तो k will be vanished because of 0, इसलिए डायरेक्ट proportional value. और नहीं तो लिख दिया करो 21k, 9k and 3k and this is equal to k. आप लिख भी दिया करो, लेकिन k रहेगा नहीं. The next, I should repeat now. कुछ क्वेश्चन कर दो. So that the 4 points are coplanar, the same. हमने coplanarity का बताया था. Third, find the equation of the plane which bisects the line joining the points at right angles. जो इनके में वो जो प्लेन हमको चाहिए, bisect the line
ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एट राइट एंगल। तो ये कर लेंगे, इनका जो पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन द प्लेन विच बाइसेक्ट्स द लाइन ज्वाइनिंग -1, 2, 3 and 3, -5. I can leave it. Now fourth, next fourth के बाद fourth से देखूं, हाँ, find the equation of the plane passing through the point a into x minus 1 plus b into y minus 1 plus c into z minus 1 and perpendicular to the following x plus 2y 1 1 say this is fourth, passing through 1 1 equation of the plane passing 1 1 1 then a into x minus x1 याद करिए plus b into y minus 1 plus c into z minus 1 equal to 0, but it is perpendicular to the two planes, perpendicular to the planes x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z equal to 7 and 2x minus 3y and 2x minus 3y plus 4z equal to 0. तो कह रहा है इक्वेशन द प्लेन दिस इज एंड इट इज परपेंडिकुलर टू इट, तो क्या होगा a into 1 a into 1 plus b into 2 plus c into 3 equal to 0. a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0. This is number 2. This is number 1. And also a into उसके भी परपेंडिकुलर है, तो a into 2 plus b into -3 plus c into a into a into 2 plus b into -3 plus c into 4 equal to 0. This is number 3. From 2 and 3 a upon b upon ऐसा c upon करते हैं ना, ये अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो a equal to k समथिंग k, अरे k फॉर्म में आएगा, k फॉर्म में वो चीज पुटिंग, आप इसको समझ रहे हैं, इसके नीचे a अपॉन, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो जो a अपॉन b अपॉन c अपॉन निकलेगा, दैट यू सब्स्टिट्यूट a b c का या तो k में के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्ट a अपॉन b अपॉन c अपॉन, तो जो नीचे डिनोमिनेटर्स है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो 1 में एंड दैट विल बी द आंसर. कितना करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी. फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन्स. कैसे एंगल कैसे करेंगे, नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन के बीच में नहीं, प्लेन के नॉर्मल के बीच में, तो वही होगा नॉर्मल, हमेशा लाइन से लाइन के बीच में एंगल होगा, तो करेंगे cos थीटा इक्वल टू देन cos थीटा इक्वल टू 2 into 1 minus 1 into 1 plus 1 into 2 equal to 0. ये 6 7 से कोई मतलब नहीं है. बिटवीन द नॉर्मल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये एंगल होगा. अगर वो परपेंडिकुलर होगा तब हम 0 लिखते हैं, अदरवाइज cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं. नेक्स्ट, ये तो किया हुआ इसलिए इसको क्या करना. हाँ, द नेक्स्ट कितना करूंगा. एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. यानी दिस इक्वेशन
जीरो नहीं रहेगा, द लेफ्ट हैंड साइड, द लेफ्ट हैंड पोर्शन प्लस k इंटू या लैम्डा इंटू दिस लेफ्ट हैंड पोर्शन equal to 0, the equation of the plane passing through the intersection of the one plane I have to go with some then सब कर चुका हूं, वैसा भी शायद कर चुका हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x plus 2y plus 3z plus 4, this is plus k इंटू या लैम्डा इंटू यूज किया होगा, हो सकता है पहले x माइनस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई plus z plus 3 equal to 0. This is the answer. But no, it cannot be answer. How can it be answer? क्योंकि it passes, lambda is unknown, तो उसके lambda के लिए कुछ दे रहा होगा. And perpendicular plane passing through the point this perpendicular to the, यही कर रहा था ना? जी. Passing through the points and perpendicular. Find the 10th कर रहा हूँ and passing through, but it passes 0 0 0, तो 0 0 ले जाओ ना, तो 4 plus 3 lambda equal to 0. This gives lambda equal to minus 4 by 3. Put lambda in first and answer. So dear boys and girls, regarding 3-dimensional coordinate geometry, I wanted to give you the brief idea. You can say that 3-dimensional coordinate geometry at a glance, I wanted to go throughout the topic 3-dimensional coordinate geometry. You know, this 3-dimensional coordinate geometry and 2-dimensional coordinate geometry, some of the formulae are very similar, alike. Like the distance formula, you know, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 square under root in 3-dimensional. There x2 minus x1 square plus y2 minus y1 under root. Here 3 axis, x-axis, y-axis, z-axis, there here. Same wise the section formula. What we had studied in 2 dimensions, if the join of the 2 points x1 y1 and x2 y2 z2 are divided in the ratio m is to n, then the point of division you have studied, that is mx2 plus nx1 upon m plus n. Y value is my2 plus ny1 upon m plus n, but here the z, so again thoda aur बढ़ जाएगा, that is mz2 plus nz1 upon m plus n. Coordinates of the point in x-axis, there x0 0y, here x0 0, y0 0, 0y0 and 0 0 z. फिर से x0 0, 0y0 and 0 0 z. Here in case of 3-dimensional, direction ratios we had not studied there, that is direction ratios of x-axis, that is 1 0 0, 0 1 0 and 0 0 1. Sorry bachcho.
1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. In plane, in 3 dimensions, equations of the planes are there: ax plus by plus cz plus d equal to 0. जनरल इक्वेशन, वहां पर जनरल इक्वेशन क्या है? z नहीं है तो क्या होगा? ax प्लस by, cz नहीं तो वो d, यहां पर c लिख देते हैं, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0. वहां पर इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1. हियर x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z by c इक्वल टू 1. There the normal form is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Here the same like here lx plus my plus nz equal to p. P the length of perpendicular from origin to the plane. डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, मैंने बहुत कोशिश किया कि डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस में आपको बहुत क्लियर बताऊं. देखो, डायरेक्शन रेशियो इज फ्रेंडली टू अस. अगर आपने डायरेक्शन कोसाइन के जगह पर डायरेक्शन रेशियो लिख दिया तो ठीक है. जब मान लीजिए ए बी सी है और मान लीजिए ए बी सी डायरेक्शन कोसाइंस है, मान लो डायरेक्शन कोसाइंस ए बी सी है, तो जब हम करेंगे उनको डायरेक्शन कोसाइन में बदलेंगे तो a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन सो, सी अपॉन सो, तो ये तो 1 हो जाएगा. अगर ये नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 हो गया तो ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हो गया. नहीं तो ए बी सी अगर डायरेक्शन कोसाइंस हो गया, नहीं तो डायरेक्शन रेशियोज में a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी अपॉन सो, सी अपॉन. Angle between two lines, that is given as cos theta equal to, cos theta is given by a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root a1 square plus a2 square plus a3 square under root b1 square plus b2 square plus b3 square. इसमें किसमें ये जो है अगर एंगल पूछ रहा है, अगर दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. ये है. सेम विथ प्लेन आल्सो. अगर मान लीजिए किसी प्लेन के कोफिशिएंट्स एक जगह पर a1 b1 c1 एंड दूसरे प्लेन में a2 b2 c2, तो आप कहेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. लेकिन यह बात जरूर देखना होगा कि हम जब ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 किसी प्लेन का इक्वेशन मानते हैं तो abc प्लेन का नहीं, प्लेन के बेटे का, मतलब प्लेन के नॉर्मल का, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो abc है. तो अगर मान लो कि ये पूछे कि फाइंड द एंगल बिटवीन अ प्लेन दैट इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ऐसा कोई प्लेन है और कोई लाइन है जो x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन, ये लाइन और वो प्लेन, तो प्लेन का तो अपना कुछ होता नहीं. और वो कह रहा है कि प्लेन से और इसके लाइंस के बीच में एंगल का, तो कहेंगे आप सर वो जो प्लेन का ए बी सी है वो तो उसके परपेंडिकुलर का है. तो कहूंगा क्या हुआ, ये लाइन और प्लेन के बीच में नहीं, लाइन और परपेंडिकुलर के बीच में हुआ एंगल. तो फिर वो कहता है फिर cos थीटा कैसे लिखेंगे? ठीक है, cos थीटा नहीं लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखोगे ना. सो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू AL प्लस BM
प्लस Cn, Al प्लस Bm प्लस Cn अपॉन अंडर रूट सो एंड सो एंड सो। हमेशा दिमाग में रखना है कि कोई प्लेन है और उसमें जो एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं? नॉर्मल के, नॉट ऑफ द प्लेन। हां, अगर मान लीजिए दो नॉर्मल के बीच का एंगल है, मतलब उनके दोनों दो प्लेन्स के का दिया है और उनके बीच में एंगल पूछ रहा है, तो ठीक है ना, उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकालने के वही होगा। दो लाइंस दिया हुआ है, उनके बीच का एंगल, वही फार्मूला चलेगा। लेकिन लाइन और प्लेन के बीच में पूछे, लाइन और प्लेन के बीच में पूछा तो cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि प्लेन का नहीं, वो तो जो कोफिशिएंट होगा एबीसी वो तो उसके नॉर्मल का होगा, ऐसा निकाल देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मान लीजिए कि दो लाइंस निकली हो, दो लाइंस दिया हुआ हो और उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप जानना चाहें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो बेटा उनके जो लाइंस है, जो लाइन है वो उनके A1 किस पॉइंट से जा रही, तो A1 और दूसरा पॉइंट A2, और किसके पैरेलल है, तो B1 और B2, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। आप हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही, वेक्टर जो फॉर्मूला है उसी टाइप से आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, इवन इफ यू आर गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म्स, कार्टेशियन फॉर्म, तो भी उसको चेंज कर देंगे नॉर्मल फॉर्म, इसके वेक्टर फॉर्म में, और तब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2। बस अपने दिमाग में जरूर सोचना है, पहले देखना है कि ये लाइन दे रहा है, दूसरी भी लाइन है, तब तो फॉर्मूला नॉर्मल चलेगा। ये प्लेन दे रहा है, ये प्लेन दे रहा है, तो भी नॉर्मल चलेगा। लेकिन ये लाइन है, वो प्लेन है, तो फिर उनके बीच का एंगल जो होगा वो cos थीटा वाले फॉर्मूले से नहीं चलेगा, cos 90 माइनस थीटा से या sin थीटा जो वैल्यू आना है। मैंने वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन बताया, तो मैंने बराबर बताया कि r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी, या r माइनस ए इज पैरेलल टू वेक्टर b, दैट इज r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा बी, r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। तो रिमेंबर इट कि a प्लस जो कांस्टेंट b, कांस्टेंट के साथ भी होगा, उसके वो पैरेलल है, और जो सीधे से साफ सुथरा a है वो उसका पॉइंट है। जैसे मान लो मैं कहूं r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो क्या कहेंगे आप कि आई जे के वो पॉइंट्स है जिसका पोजीशन वेक्टर है, उससे वो लाइन पास हो रही है, और 3i प्लस 4j प्लस 5k उसके पैरेलल है, यानी कि वो लाइन किससे होकर के जा रही है, i प्लस जे प्लस के का मतलब 1 1 1 आई जे के का कोफिशिएंट। मान लो कोई पॉइंट है, उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, i 1 1 1 है तो i प्लस जे प्लस के, x1 y1 z1 है, x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के, प्लस लैम्डा बी, तो वो तो है उसके पैरेलल, तो वो जो उसका कोफिशिएंट्स है आई जे के का, वही उसका डायरेक्शन रेशियोज है। इसमें भी अपने प्लेन के फॉर्म में भी r डॉट एन इक्वल टू पी, r डॉट एन इक्वल टू पी, तो यहां पर बेटा r तो है, वो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो तो मतलब वेरिएबल पॉइंट है, सो इसीलिए हम r को लिख देते हैं, कभी भी कन्वर्ट करना हो तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि वो पॉइंट एक्स वाई जेड रहा होगा, r हम शॉर्ट में लिखते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग विथ अस दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो है। और डॉट एन,
n जो यहां पर है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, यूनिट नॉर्मल नहीं है, वो n है, r डॉट n ये है इक्वल टू सम कांस्टेंट। लेकिन जब वो कहेगा कि नहीं आप इसमें इसका नॉर्मल फॉर्म बताइए, कोई भी अगर वेक्टर फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म बताइए, तो क्या करेंगे, हाँ ये तब उसके बाद जो p होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब वो हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपको जानना है जरूरी, इमेज पॉइंट जानना है जरूरी, जिस पॉइंट का जिस प्लेन में इमेज पॉइंट है वो प्लेन का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे पहले, और जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा बाहर वाला पॉइंट पता चल जाएगा, इमेज पॉइंट x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2 ऐसे करके निकाल लेंगे। कोप्लेनरिटी के लिए, अगर मान लीजिए कोप्लेनरिटी के लिए है क्या है, तो कहेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में ही करो, वो लंबा पड़ जाएगा, दूसरा वाला लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसको इसी तरह से करो, दैट इज x2 माइनस x1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 और डिटर्मिनेंट फॉर्म करके उनको वैल्यूज निकालो। आप जानते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में हम क्या बताएं, कितना माने वो कॉमन बात है ये, तो उसके बाद से आप जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, इफ इट इज 0 देन कोप्लेनरिटी इज देयर। और नहीं कह रहा है उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए, उस प्लेन का इक्वेशन निकालिए, तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ही करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 नहीं लिखेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, दूसरे लाइन में दूसरे रो में L1 M1 N1 बिल्कुल उसी तरह से, और तीसरे रो में L2 M2 N2 ऐसा करके, और तब जो डिटर्मिनेंट में आएगा आफ्टर सॉल्विंग दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो whenever 3-dimensional coordinate geometry R vector all such, कोई मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है एंड दैट आई कैन शेयर विथ यू। मैं जब भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हूं, जब मैं हार गया हूं, कहा हूं कि अच्छा ठीक है पूछ लेंगे या देख लेंगे किसी बुक में कहीं ये क्वेश्चन होगा तो ना, लेकिन जब भी मैंने ये देखा कि नहीं कहाँ कोई है, मेरे लिए कौन सहारा होगा, किसको पूछूंगा कि ये है, तो उसके बाद खुद ट्राई करो, उसको कैंसिल कर दिया, फ्रेश किया एंड आई गेट द आंसर। कभी कभी तो ये होता है कि हम सब ठीक कर रहे हैं एंड ट्वाइस आई हैव done the mistake. Why? Because I just wanted to calculate orally in sky 2 minus 1. अब वो -1 है तो 2 minus 1 को 1 लिख देते, अरे बाबा वो 3 होगा, 2 minus -1। तो इसलिए अच्छा है कि आप जब क्वेश्चन करें और बाय द वे गलत हो जाए तो आप स्टेप बाय स्टेप करें, स्टेप बाय स्टेप। जब स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपकी गलती पता चल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। तो विथ ऑल द बेस्ट, आप पैशन रखिए, आप कॉन्फिडेंट होइए, आप ये समझिए कि यू आर द विनर एंड माय ब्लेसिंग्स आर देयर।